यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश के लोगों मैं उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की पढ़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म को स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। O give thanks to the Lord, call upon his name, make known his deeds among this people. Sing to them, sing praises to him, tell of all his wondrous work. Glory in his holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Seek the Lord and his strength, seek his presence continually. Remember the wondrous works that he has done, his miraculous, and the judgments he uttered. O offspring of Abraham, his servant, children of Jacob, his chosen ones. He is the Lord our God, his judgments are in all the earth. अजीजों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। और हम आज की जो इतवार की इबादत है, आपका स्वागत हम आज परमेश्वर की उपस्थिति में करते हैं। हम लोग निरंतर मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए आ रहे हैं और हमारी जो ऑनलाइन वर्शिप जो चल रही है उसके अंदर आप सब इन्वॉल्व हैं, आप सब संगति करते हैं, आप सभी का हम धन्यवाद देते हैं। और आज के वर्शिप भी परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो और होने दे, परमेश्वर की हम उसकी उपस्थिति को आज के वर्शिप के दौरान महसूस कर सकें। My friends, we welcome you all in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ this Sunday worship. And may God bless all of us abundantly as we keep on abide in this worship service through media. And may Lord bless us abundantly. Let us pray before we start today's worship service. Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful morning that you have given us, the Lord, as a privilege to serve you. And Lord, as we all are joining, Lord, today's worship, Lord, be with us and be among us, O Lord. And Lord, let your glory be shine upon all of us in today's worship, acceptable unto you, O Lord. And Lord, we commit every one of us into your mightiest presence and caring hands, O Lord. And Lord, be with us all the time and throughout this whole service, Lord. And we commit pastors, we commit each and everything into your mighty hand. And we also pray today's Lord's sermon, today's praise and worship, today's singing, songs, each and everything may acceptable unto you, Lord. And Lord, you may glorify through our deeds and actions. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, ये वक्त होगा कि हम अपने पहले गीत को गाएंगे, जो कि पाया जाता है इंग्लिश मेथोडिस्ट हिम्नल song number 224, Blessed Assurance, Jesus is Mine. Or at the same song, it is found in Hindi Methodist hymnal song number 292, यीशु है मेरा कैसा खुशहाल। आइए हम इस गीत के दौरान परमेश्वर की इबादत को करें।
Visions of rapture now burst on my side. Angel descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. यीशु पर रखता अपना ईमान, उसमें मैं होता नया इंसान, उसके प्यार से होता हूँ से कुव्वत पाके रहता दिले। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ में करता रहा। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ में करता रहा। अब ये वक्त होगा अजीजों कि हम रसूलों का कीदा यानी अपोस्टल्स क्रीड एक साथ पढ़ेंगे, जो कि पाया जाता है इंग्लिश मेथोडिस्ट हिम्नल सेक्शन नंबर 738 और हिंदी मेथोडिस्ट हिम्नल सॉन्ग पेज नंबर 1, जिसमें रसूलों का कीदा जो लिखा गया है। आइए हम अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करें और इस रसूलों के अकीदे के अंदर हम लोग सब शामिल हो। मैं इत्मीनान रखता हूँ खुदा कादिर मुतल्लक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूल कुदूस से मुजस्सिम होकर कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतल्लक के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहां से वो जिंदा और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्मीनान रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसिया आयाम पर, मुकद्दस रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और अबदी जिंदगी पर। आमीन। अजीजों, आज का जो उत्तरवादी पाठ लिया गया है वो लिया गया है भजन संहिता 118 1 से लेकर 20 वचन तक। For today's responsive reading has been taken from the book of Psalms, number 118, verses beginning from 1 to 20, and I will be reading first verse and you will be reading second verse, and the last verse will read all together. भजन संहिता 118 उसका 1 से 20। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है, हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है, यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा के शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा के शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया, परंतु यहोवा के नाम से मैंने निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा।
उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। यहोवा, उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। आखिरी वर्ष आइए हम लोग सब एक साथ मिलकर पढ़े। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। आइए हो सिताइश बाप की हम लोग सब एक साथ मिलकर गाएं। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है अब भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। My beloved ones, now it's time for pastoral prayer. May I request Reverend Dr. John R. Vishwas, please come and lead us in pastoral prayer, followed by Lord's Prayer. प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। ये समय होगा कि हम पास्टरल प्रेयर में चलें। हम प्रार्थना करेंगे आप सबों के लिए, हम सब के लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने आज का ये दिन हमें दिया कि आज हम उसकी आराधना में भाग ले सकते हैं। हम धन्यवाद देंगे कलीसिया के एक एक परिवार के लिए, एक एक बुजुर्ग के लिए, माँ बाप के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए। Dear friends, this morning we're grateful to the Lord for giving us time to pray for each other, especially during this pastoral prayer. We pray for each family of this congregation, each parent, our senior citizen, all our young people and especially the children. हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें स्वस्थ रखा इन दिनों में, और आज जबकि इस महीने का पहला रविवार है, प्रभु ने हमें दिखाया। हम इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मित्रों, आज अगर हमारी सर्विस इन पर्सन होती तो हम प्रभु के मेज में भाग लेते, लेकिन आज ये हो नहीं पा रहा, पर हम जानते कि प्रभु उस कारण को जानता है। हम धन्यवाद देंगे कि उसने हमें स्वस्थ रखा है, बीमारी से बचाया है, और आज का दिन उसने हमें दिखाया। हम साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे हमारे उन भाई बहनों के लिए आज जो और इस हफ्ते में अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। प्रभु ने आशीष दे, और खासकर उन तमाम जोड़ियों के लिए जो इन दिनों में इस हफ्ते अपने विवाह के वर्षगांठ को मना रहे हैं। हमारे के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। लेट अस गो एज वी come before the Lord with all humility and thanksgiving in this pastoral prayer. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज प्रातःकाल आपने मौका दिया कि आज हम फिर से एक बार आपके पास आ सकते हैं, आपके सामने झुक सकते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति, आपकी महिमा कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते प्रभु कि आप इसके योग्य हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि पिछले हफ्ते आपने हमें संभाला प्रभु जी, और आपने हमें रक्षा करी, आपने हमारी आवश्यकता पूर्ति करी, और आपने बड़ी दया करी प्रभु कि इस नए सप्ताह को हम दे सकते हैं, नए महीने को देख सकते हैं। हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं। Heavenly Father, this morning we are grateful to you for giving us this new day, even the first day of this new month. Thank you, Lord, that you have brought us here to worship you. We do remember, Lord, the blessing you have entrusted in our lives, Lord. You have given to us in our lives, personally, in family-wise, as a church. We want to thank you and praise you. Heavenly Father, we want to give ourselves
in your altar. I pray, God, that lead us and guide us. Help us that we may walk with you day by day. We thank you, Lord, for your word that you have kept us in our hands. जो वचन आपने प्रभु आपने हमारे हाथों में दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम जानते हैं वचन वो वचन है प्रभु कि आप चाहते कि हम रोज पढ़ें, उससे प्रभु मार्गदर्शन हासिल करें, आपकी इच्छा को जाने, आपकी योजना को जाने, और प्रभु अपने जीवन को आपके तरीके से आगे बढ़ा सकें। Lord, we thank you, Lord, that you have given your word to us. As we read this word, we know your will, you know your plans, and we know, Lord, the way you want us to grow in you day by day. So lead us and guide us. हम प्रार्थना करते प्रभु, धन्यवाद के साथ एक एक परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु हमारे देश के लिए जहां पर आपने हमें रखा। प्रभु जी, हमें हर प्रकार से आज़ादी है कि हम आज़ादी के साथ आपके नाम को ले सकते हैं, आपकी महिमा कर सकते हैं, आपकी बड़ाई कर सकते हैं। हे प्रभु, हमारे इस आज़ादी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु हमारे उन परिवारों के लिए जहां लोग आज दुखी हैं, परेशान है, कठिनाइयों में है, चिंताओं में है। हम चाहते प्रभु कि आप उनको उनके कठिनाइयों से निकालें और अपनी शांति से उनको परिपूर्ण करें। आज की आराधना पर आपके आशीष चाहते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु हमारे देश के अंदर कलीसिया के लिए प्रभु, जबकि कलीसिया में जगह जगह परेशानियां प्रभु, परेशानियों को लोग लाते हैं। हम चाहते प्रभु कि आप उन पर अनुग्रह करें प्रभु, ताकि वो आपको जाने और आपकी सच्चाई को अपने जीवन के अंदर कबूल कर सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं इन दिनों के लिए प्रभु, जबकि चारों तरफ ये पेंडेमिक का काल है प्रभु जी, और ये बताया जा रहा है कि थर्ड वेव अब आने ही वाला है। हे प्रभु, हम इन बातों को समझ नहीं पाते हैं, पर इतना जानते कि हमारा परमेश्वर हमारी सहायता मदद करता है, और जब वो हमारे साथ है तो इन तमाम बातों का असर हम पर नहीं होगा, क्योंकि उसने अभी तक हमें संभाला, आगे भी संभालेगा। वी नो लॉर्ड दैट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड you have been so faithful to us, Lord, keeping us in good health, providing our needs, and we pray, God, that continue to lead and guide us, Lord, so that our eyes are fixed on you and we may continue to walk with you. प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जिनके इस हफ्ते जन्मदिन है प्रभु जी। अपने दास दासी को संभाले प्रभु, उन्हें आशीषित करें और उनके आने वाले साल को मुबारक करें। हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, उन कपल्स के लिए धन्यवाद देते हैं, जोड़ियों के लिए जिस हफ्ते अपने शादी के सालगिरह को मनाते हैं। हम चाहते हैं उन्हें आशीष दे प्रभु, और उन्हें उनके परिवार के लिए और कलीसिया समाज के लिए आशीष का कारण बनाए। हमारी प्रार्थना प्रभु धन्यवाद के साथ आपको वचन के लिए प्रभु जी, जिसका प्रचार आज किया जाता है आपके दास के द्वारा, प्रभु उसको समझें और अपने जीवनों को बहुत आयत के साथ प्रभु आपके द्वारा खर्च होने देने वाले बन सके। हमारी प्रार्थना प्रभु धन्यवाद के साथ पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे अगुवाई करता है, होने दे प्रभु कि हम पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलें और अपने जीवन में सतर्क रहें प्रभु, ताकि आपका आत्मा हमारी अगुवाई आपके अनंत के मार्ग में कर सके। हे पिता परमेश्वर, आज दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, इस पूरे सप्ताह के लिए और पूरे माह के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, और चाहते प्रभु कि आप हम पर दया कर अनुग्रह करें। इस कलीसिया के पास्टरेट कमेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टरेट कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना करते हैं, WCS के बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, टीचर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, MYF के बच्चों के लिए, जवानों के लिए और उनके अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, मैथडिस्ट मैन फेलोशिप के प्रार्थना करते हैं। हर एक पर आपके आशीष हो। आज की आराधना को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, चाहते प्रभु कि हमारे अगुवाई, हमारी मदद और हमें आप संभालें। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना अपने देश के लिए करते हैं, जहाँ चारों तरफ प्रभु परेशानी है, निराशा का वातावरण प्रभु इस पैंडेमिक की वजह से, प्रभु इस वातावरण को दूर करें, और ये जो पैंडेमिक है प्रभु इनको पूरी तरह से खत्म कर दे प्रभु, ताकि लोग शांति से जिए, आनंद से जिए, हमारे बच्चों की स्कूल खुल सके, और हमारे जवान जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में है प्रभु जी, उनके लिए भी पढ़ाई का साधन हो सके। जो लोग नौकरी पेशा में है प्रभु उनकी मदद करें, उनकी आवश्यकता पूर्ति करें। बाकी समय को आपके हाथ में देते हैं। आज की सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद। वी थैंक यू लॉर्ड दैट यू हर्ड आवर प्रेयर। Thank you Lord for your promises, and thank you Lord that you are with us. We want to submit and surrender our entire being on your holy altar. Take us, guide us and lead us, so that we may glorify your name, ताकि हम प्रभु आपकी महिमा स्तुति कर सकें। आज की आराधना पर आपके आशीष हो, क्योंकि मैं सब कुछ उस प्रभु के नाम से मांग लेते हैं जिसने हमें ये दुआ सिखलाई है। आए हमारे बाप, तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे,
और जैसे हम कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक बार फिर से हम देते हैं। अब ये वक्त होगा कि हम अपने एक और गीत को गाएंगे जो हिंदी मेथोडिस्ट हिम्नल सॉन्ग नंबर 382A के अंदर पाया जाता है, हम विश्वास से एक देश देखते हैं। आइए इस गीत के दौरान हम परमेश्वर पिता को महिमा दें। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान, वहाँ यीशु कर रहा तैयार मेरे लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। अपने काम से विश्राम करेंगे, शुक्र क्लेश और सब दुख होंगे दूर, भजन सुंदर मनोहर वहाँ, तब हम गावेंगे हर से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। प्रेम और आशीष अनुग्रह संपूर्ण आनंद पूर्वक मन खोल के सदा, यह है पिता के अद्भुत वरदान, हम तब करेंगे स्तुति का गान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। अजीजों, अब ये वक्त होगा स्क्रिप्चर रीडिंग का। फॉर टुडेज स्क्रिप्चर रीडिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ 2 Kings चैप्टर 4 वर्सेस 8 to 37। यानी आज का जो पाठ लिया गया है वो लिया गया है दूसरा राजाओं उसका 4था अध्याय 8 से लेकर 37 वचन तक। सभी को जय मसीह की। आज का शास्त्र पाठ लिया गया है दूसरा राजा 4था अध्याय 8 से 37। एक दिन की बात है कि एलिशा शुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अंततः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तक उसी में टीका करे। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरोठी कोठरी में टीका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त,
ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकल कर द्वार बंद किया, तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांध कर अपने सेवक से कहा, हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना। तो वह चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह शुनेमिन है। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह अब कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने न कहा था मुझे धोखा न दे? तब एलिशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलिशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे न छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उससे उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलिशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। जब एलिशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार चीखा और अपनी आंखें खोली। तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, शुनेमिन को बुला ले। तब उसके बुलाने से वह उसके पास आई। तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांवों पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। पवित्र वचन का पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे, आमीन। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने ये मुझे मौका दिया कि मैं उसके कलाम को आज इस संडे के अंदर मैं आप लोगों के साथ बांट सकूं। और जैसा कि आपके सामने आज का वचन पढ़ा गया, 2 राजाओं उसका 4 अध्याय 8 से लेकर 37 वचन तक। और यहाँ पर आज मैं आप सभी का स्वागत इस मॉर्निंग के अंदर मैं करता हूं। और वास्तव में परमेश्वर महान है। आइए हम अपने दिलो और दिमाग को खोलें और आज के संदेश को हम अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि जो परमेश्वर की इच्छा है वो क्या है वो हम जान सकें। सबसे पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि हम क्या हिम्मत वाले हैं? आर वी डेयरिंग? या फिर दूसरे तरीके से मैं पूछूं, डू वी हैव टू डेयर टू से दैट
my life is going on well. Everything is going on well. क्या हम में ये हिम्मत कहने की है कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है? Even though we are in grief, जबकि हम अपने पीड़ा के अंदर, अपने संकट के अंदर पड़े हो सकते हैं, क्या हमारे अंदर उन पीड़ाओं के अंदर भी ये हिम्मत है कि मेरे जीवन के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है? Because this daring starts from our faith in something or someone. ये जो साहस है, ये जो हिम्मत है, ये हमारे विश्वास के साथ शुरू होती है। ऐसे विश्वास के साथ कि हमारा विश्वास किसी पर हो या किसी वस्तु पर हो। A more sensible way of asking this question to be would be to ask that on whom or what or where do you or have you placed your faith today? That is the main question. This is the another question of faith. Do we have faith? If we have faith, where our faith will be? हमारा जो विश्वास है वो कहां पर होगा? An atheist might ask me, what's the difference then? Well, simply put, we can have faith in many things, but God alone is faithful. God alone is faithful. God alone is capable of honoring and responding to our faith. The Shunammite woman in this passage also had placed her faith in things other than God. One day, God wanted to deal with her misplaced faith, and it is fascinating to watch how it unfolds in our text this morning. Let's visit the text and see what we can learn and apply to our lives in an effort to make us stronger in the Lord, to make us stronger in the presence of the Lord. That's why I entitled my sermon as Everything is Alright with God. Everything is alright with God. यहाँ पर जब हम शुनेमाइट, जो शुनेमीन जो स्त्री थी, उसका जब विश्वास को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसके विश्वास के अंदर काम किया। और आज जब हम इस टेक्स्ट के माध्यम से देखेंगे जो आपके सामने लिया गया, दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय 8 से लेकर 37 वचन तक, वहां पर परमेश्वर हमसे आज इस सुबह क्या बात करना चाहता है। इसलिए मैंने आज इस टेक्स्ट के आधार पर अपने सर्मन को टाइटल दिया है एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज ऑलराइट विद गॉड। सब कुछ परमेश्वर के साथ भला है, अच्छा है, ठीक है। Let us pray. Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful morning once again that you have given us as a privilege to share your word with your people, O Lord. And Lord, be with me. I want to speak, but your Holy Spirit will speak through me, O Lord. Open our hearts, mind, and souls over whatever we may hear, whatever we may learn, it may be acceptable unto you, and it may bring glory of you in our lives, Lord. And thank you, God, for hearing our prayer. We ask this prayer in Jesus' name. Amen. First of all, when we look into the background of this text, there are times when there seems to be a disconnect between our walk with God and the outcome of our prayers. Sometimes circumstances can seem to contradict the fact that God is watching over our lives and guiding its events for our good. So what do we do when such contradiction confront us? कभी-कभी जो हमारा विश्वास है, हमारे परमेश्वर के साथ चलने के साथ डिस्कनेक्ट होता है, अलग होता है। और कभी-कभी हम अपने विश्वास के बारे में जब सोचते हैं, जब सर्कमस्टेंसेस, जब परिस्थितियां हमें घेर लेती है, तो हम सोचते हैं कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है? क्या जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं वो परमेश्वर हमारा भला है? कैसे हम इस चीज को कन्फ्रंट करते हैं? We are going to look at the narrative from the Old Testament in which a woman's faith seems to be a short change, and then examine how to respond to the forces of doubt. The Bible from Genesis to Revelation has detailed and shine light upon some very powerful and very interesting women.
we find such a one in our text for examination. हम देखेंगे आज की कैसे इस स्त्री का जो जो विश्वास था वो कैसे अच्छाइयों को लेकर इसके जीवन में आए. The woman name unknown in the Bible whose son Elisha raised from the dead. The Shunammite woman was a wealthy and well-respected person in the society. The meaning of Shunammite is their change or their sleep. यहाँ पर जब हम स्त्री की बात करते हैं इसका नाम नहीं दिया गया, मगर शुनेमिन की स्त्री जो थी वो धनी थी और उसका एक अच्छा रुतबा सोसाइटी में उस समाज में था. और शुनेमिन की जब हम बात करते हैं, शुनेम का मतलब होता है उनका बदलाव या उनका सोना. शुनेम was a small village mentioned in the Bible. एक छोटा सा एक विलेज है, एक गांव है जो बाइबल के अंदर मेंशन किया गया है. जब आप पढ़ते हैं बाइबल को तो that was the possession of the tribe of Issachar. It was located near the Jezreel Valley. North of Mount Gilboa. When you read Joshua chapter 19 verse 18, you can find out the glimpse of this village. ये जजरील वैली के पास नॉर्थ यानी उत्तर में माउंट गिलबोआ के पास था. फिर जब आप पढ़ते हैं शमूएल, पहला शमूएल उसका 28वां अध्याय 4वां वचन, यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो शुनाम is where the Philistine camped when they fought Saul, the first king of Israel. First Samuel chapter 28 verse 4. और यहाँ पर जब आप देखते हैं जब फिलिस्तियों के जो लोग थे जब सॉल के साथ जब उनकी लड़ाई हुई थी तो वो इसी यहाँ पर ही रुके थे. It was the hometown of Abishag, King David's companion in his old age. जब आप ये पढ़ेंगे पहला राजाओं उसका पहला अध्याय पहला वचन, यहाँ पर आपको अभिषाक के बारे में मिलेगा. The prophet Elisha was hospitality entertained there by a wealthy woman whose deceased son Elisha brought back to life. 2 Kings chapter 4 and verse 8. Shunem was a small town just off a major international roadway known as the Via Maris. The Via Maris was a major trade route in the ancient Near East. ये एक ट्रेड रूट हुआ करता था जहां पर लोग आयात और निर्यात किया करते थे अपने सामानों का. बहुत ही एक एंशियंट नियर ईस्ट के अंदर ये एक गांव हुआ करता था, या आप कह सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया एक कमर्शियल प्लेस था. Going from Egypt through Israel up to the Damascus, which is in Syria, where it then connected with other routes to Syria or Babylon. ये Babylon, Syria इन सब रूट्स को ये एक हाईवे के रूप में भी हो सकता है जोड़ता हो. This was a major pipeline for trade, and the people who lived along the route had a chance to profit by travelers and live in a wider world due to the trade potential. और ट्रेड की दृष्टि से, आयात निर्यात की दृष्टि से ये काफी एक सुलभ एक गांव या एक विलेज हुआ करता था. This town Shunem was in the region that we know the prophets were active, but it's away from Elisha's home base in Samaria. We don't really know where he was going while he was passing through Shunem. हम ये नहीं जानते कि जब एलिशा जब शुनेम से गुजरा करता था तो वो कहाँ जाया करता था, मगर इतना पता है कि उसका जब भी टूर लगता होगा तो शुनेम उसका एक कॉमन प्लेस था जहां से वो जाया करता था. फिर यहाँ पर देखते हैं, but it makes a lot of sense that he needed somewhere to land when he was in this region. और ये एक सेंस को उत्पन्न करता है, ये एक ऐसी विचारधारा को उत्पन्न करता है कि जाहिर सी बात है जब वो जगह से गुजरता हो तो उसको रहने के लिए भी कोई जगह चाहिए होती हो. इसलिए इस प्लेस के बारे में एक शुनेम का जो वर्णन है वो ये कहता है. अजीजों जब हम इस गांव की बात करते हैं, शुनेम की बात करते हैं, वहां से जब भी ये गुजरा करता था तो वहां पर एक स्त्री जो थी शुनेम की स्त्री जो अपने अच्छे रुतबे को रखती थी वो उसको देखा करती होगी और उसने अपने पति से बोला ये परमेश्वर का एक पवित्र जन मालूम पड़ता है ना. परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर ने वहां से काम करना शुरू किया और वहीं से एक ऐसी प्रिपरेशन परमेश्वर ने बनाई, एक ऐसी तैयारी करी, एक ऐसा वे बनाया उस स्त्री के लिए
जहां पर वो उसको रिकॉग्नाइज करती है और कहती है कि हमें इसके रोकने के लिए एक कोठरी बनानी चाहिए। और जब भी एलिशा जाया करता था तो वहां पर वो रुका करता था, भोजन को किया करता था और फिर वहां से वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया करता था। और तब वो स्त्री कहती है, ये परमेश्वर का पवित्र जन है। ही इज ए होली मैन। आई लाइक दैट टर्म, होली, होली मैन। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to ask you this question. What does it mean by saying holy man in today's term? आज के युग में जब हम किसी मनुष्य की बात करते हैं और कहते हैं ये पवित्र जन है, तो उसका मतलब क्या है? जहां तक मैं सोचता हूं, a holy man, he one who strives to be like Jesus Christ. It is one who keeps the word of God in his heart, in her heart, and takes action on that word. A holy man feeds the poor. A holy man helps the needy people. A holy man heals the sick in the name of Jesus. Holy man has the fruit of the Spirit in his or her life. Follows the commandment of the Lord all the day of his or her life. Has love and compassion for all. This is the characteristics of the holy man and holy women. ये पवित्र जो जन होते हैं परमेश्वर के, उसका ये एक विशेषताएं यहाँ पर बताती है. He spreads the word of God to the people, those who are really in need to listen the word of God. जो वास्तव में परमेश्वर के खोजी हैं, उनको भी ये प्रचार करते हैं. As you can see, we will fall short, but the Lord did say that we should strive for perfection as He is perfect. That's why Yahweh says, be holy as I am holy. Be holy as I am holy. पवित्र बनो जैसा मैं तुम्हारा यहोवा पवित्र हूँ. In human terms, if we talk about holy, I would consider one who strives for perfection in the Lord a holy man, a holy woman. जो अपने आप को परमेश्वर के उस परफेक्शन के अंदर डाल देता है, समर्पित कर देता है या कर देती है, वही परमेश्वर का पवित्र जन है. Here, the woman and her husband built a small room in their house for Elisha to stay in when he passes through. He becomes a regular guest in their home. Elisha wants to repay the hospitality, and so he, in an odd or indirect way, asks her how he can repay the favor. Perhaps his royal connection can help them. She responds that she and her husband don't really need anything more than what they have. They are self-sufficient. यहाँ पर जब वो एलिशा इनका रेगुलर गेस्ट हो गया, मेहमान के रूप में आया, तो उसको इनडायरेक्ट वे में उसको रिपे करना था. परमेश्वर का दास था, कुछ ना कुछ देना था. और वो क्या देता? आशीषों के रूप में कुछ ना कुछ तो देता ही. और उसने वहां पे एक शुरुआत की और कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले क्या दे सकता हूँ. और शुनीम की स्त्री कहती है कि हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं. फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, एलिशा ने अपने सर्वेंट से पूछा, अपने सेवक से पूछा, गहेजी से, कि हमें इनके लिए क्या करना चाहिए. और गहेजी जो था, गहेजी मैं सोचता हूं कि बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर था. उसने पॉइंट आउट किया, उसने हो सकता है जब वो जाता हो, है ना, एलिशा के साथ वो देखता हो तो उसको कुछ ना कुछ कमी लगती हो, तो उसने कहा कि इनको बालक नहीं है, इनको कोई बच्चा नहीं है ना, क्योंकि उसका जो पति है वो बहुत ही बुजुर्ग हो चुका है. ये अपने ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर गहेजी एलिशा को बता रहा है. जबकि एलिशा ने जब कपल से भी पूछा तो क्या हुआ, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने अपनी कमी नहीं बताई,
उन्होंने बस यही कहा कि वी हैव सेल्फ सफिशिएंट, वी हैव एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ है। नाउ द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर। अब यहां से एक कहानी की शुरुआत होती है, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत होती है जो परमेश्वर के साथ हमारे विश्वास को जोड़ती है और ये बताती है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट विद गॉड। सब कुछ परमेश्वर के साथ क्या है? भला है। सब कुछ परमेश्वर के साथ अच्छा है। There were the milestones through which the Shunammite woman had to go by holding faith in Yahweh. और वहां पर बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन्स उसके जीवन में आए थे जहां से उस स्त्री को अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ चलना था और वहां पर रुकना नहीं था, मगर परमेश्वर पे उसको विश्वास करना था। तो सबसे पहली चीज जब हम इस पैसेज से सीखते हैं, वो सीखते हैं रिवॉर्ड फॉर हॉस्पिटैलिटी। रिवॉर्ड फॉर हॉस्पिटैलिटी यानी जो सेवकाई है उसका परमेश्वर क्या देता है, क्या वरदान देता है, उसको क्या रिवॉर्ड देता है। सबसे पहली चीज, why Gehazi did raise the need of the Shunammite wealthy couple? क्यों यहां पर गहेजी ने इस प्रश्न को उठाया या इस नीड को, इस आवश्यकता को उठाया कि इनको एक एक उसकी जरूरत है बच्चे की। जैसा मैंने बताया, एक परफेक्ट ऑब्जर्वर था और वो ये भी जानता था, है ना, कि कि परमेश्वर उनके साथ क्या करने चाहेगा। मुझे ये वर्ष याद आती है यिर्मयाह उसका 32वां अध्याय उसके 17वें वचन में, जहां पर लिखा हुआ है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। Gehazi knew the power of Elisha. Gehazi knew the power of the servanthoodship of Elisha because Elisha used to walk with God all the time. Gehazi knew that. Gehazi इस चीज को जानता था। वो ये भी जानता था कि एलीशा कुछ इनके लिए इस संदर्भ में कर सकता है। The Shunammite was a noble woman who delighted in showing hospitality to Elisha. The Lord surely took note of this and wanted to reward her with a long forgotten desire of her heart. और परमेश्वर इस सब के जरिए उसके जीवन में काम करने वाला था एक रिवॉर्ड के रूप में, क्योंकि उसने परमेश्वर के दास की सेवकाई की, दास की पहनाई की अपने परिवार के साथ। जब यहाँ पर हम देखते हैं, in return for all the good things she was doing to ensure the comfort of his servant. If you read in the New Testament, जब आप नए नियम में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 41वें वचन को, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet reward, and he that receiveth a righteous man in the name of the righteous man shall receive a righteous man's reward. यहाँ पर एक ऐसे आशीष की बात हो रही है जो परमेश्वर के धर्मी जन को जब लोग ग्रहण करते हैं या उसके सेवकों को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर कैसे अपने उस रिवॉर्ड को देता है उनकी पहनवाई के जरिए। This woman, however, just like any other, had longed for a child but failed. ये हो सकता है जो शुनेमी की स्त्री थी उसके जीवन में भी ये चल रहा हो, एक बच्चे की आस हो, मगर क्या हुआ? वो फेलियर हुए इस चीज के। हो सकता है कारण कुछ भी हो, कुछ भी कारण हो सकता है। Then, like any other children woman, had made up her mind to move on with life. यानी दूसरे जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए उस कपल ने सोच लिया होगा कि हमें तो चलना है, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, चलते हैं, है ना। Gradually she became comfortable with there she was in life. और धीरे से क्या होगा, वो used to हो गए होंगे, वो आदी हो गए होंगे इस जीवन के लिए, वो इस जीवन के लिए आदी हो गए होंगे।
और इसलिए जो शुनेमन की जो स्त्री थी, है ना, उसने अपनी कम्युनिटी को ही अपना घर बना लिया होगा, अपने अपने जो ब्राइट जो उसका सराउंडिंग्स थी उसको ही अपना घर बना लिया होगा, और कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा कि अब हमें कुछ नहीं हो सकता, अब इनके बच्चे मेरे बच्चे हैं, इनका परिवार मेरा परिवार है। और यहाँ पर ये जो चीज थी, इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती है, compromise the situation and with time without knowing the will of God for her, because by seeing her act of hospitality, God loved her and honored her so much and he decided to give her a reward. यहाँ पर परमेश्वर ने जब उसकी हॉस्पिटैलिटी को देखा, पहनाई को देखा, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने निश्चय कर लिया कि मैं अपने दास के द्वारा इसको एक रिवॉर्ड, अपने दास की उस बोली को मैं पूरा करूंगा। और यहाँ पर परमेश्वर इसको रिवॉर्ड देने वाला था, इसको एक ऐसा वरदान देने वाला था जिसकी एक्सपेक्टेशन इस शूनेमिन स्त्री ने कभी नहीं की। And that's why that was the prepared reward from God's side in her life. सब धन से बढ़कर वो था, हर प्रकार की प्रतिष्ठा से बढ़कर वो था। That's why in 1 Corinthians chapter 2 and verse 9 says that no eye has seen, no ear has heard, and no human mind has ever conceived the things God has prepared for those who love Him. यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 9वां वचन, और यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बातें आंख से नहीं देखी गई और कान से नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। वो ये बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। यदि आप दूसरों से प्यार करते हैं, यदि आप दूसरों से इज्जत करते हैं, यदि आप दूसरों को अपनी प्रार्थनाओं में उठाते हैं, दूसरों के लिए आप कंसर्निंग है, तो जो व्यवहार आप दूसरों से करते हैं वही व्यवहार आप परमेश्वर के साथ करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरे से प्रेम रखते हैं उनके लिए मैं ऐसी ऐसी बातें तैयार करूंगा, एंड आई विल प्रिपेयर फॉर दैट वे फॉर देम। उनके समझ से परे होगी, उनके दिमाग से परे होगा, मगर परमेश्वर के हाथों में वो चीज है। That's why I said everything is all right with God. परमेश्वर जब तैयार करते हैं उसके हाथों में सब कुछ होता है। Discovering these things actually takes a step of faith. The problem with comfort zone is they replace our faith in God with a fake sense of assurance found only inside our comfort zone. At such time, God walks us to a place where He challenges our faith. Remember this. Remember this always. At such times, God walks us to a place where He challenges our faith. हमारे को इस जगह पे लेकर जाता है जहां से वो हमारे विश्वास को चुनौती देता है। परमेश्वर कहता है, अगर तुझ मुझ पे विश्वास करते हो तो मैं देखता हूं तुम मेरे पे कैसा विश्वास करते हो। Let me see your faith in the times of your trouble. Let me see your faith in the times of your grief. Let me see your faith in the times of your problematic situations. Let me see. Do you have faith in me, or just you are doing formality? There are times we can grow too comfortable because life is pretty good. We grow too comfortable for God to work a miracle on our behalf because we focus too much upon how good God has already been to us. And that's as good as it is going to be. Real faith lays claim to God's promises, but it also submits to His plan for victory. It submits
to his plan for victory. अंत में परमेश्वर विजय बनाता है। यही उसका एक सबसे बड़ा रिवॉर्ड है हमारी पहनुआई का। हम सोचते हैं कभी कभी किसी की पहनुआई करने से क्या मतलब, हमारे जीवन में तो ऑलरेडी कमी है, हम करेंगे तो क्या होगा। सारपत की जो विधवा थी, जब एलिया पहुंचा है वो घड़ी, उसने कहा थोड़ा है, हम तो वेट कर रहे हैं हमारे मरने का। शी वाज काउंटिंग हर टाइम, हर हर son's time also on her finger. एलिशा also, जब एलिशा भी गया तब वो स्त्री जो थी है ना, वो भी बौखलाई हुई थी, कैसे मैं पूर्ति करूं, हमारे पास तो बहुत थोड़ा है। अगर क्या हुआ, परमेश्वर ने कैसे रिवॉर्ड दिया, उनके विश्वास का आदर किया। अपने दास के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन को भर दिया। He filled their life with grace and mercy. God is greatest God. वो कम नहीं है, वो छोटा नहीं है, मगर वो महान है और हर चीज को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। The text tells us the prophet Elisha called the woman and told her she would have a son by that time next year. The prophecy was fulfilled and the women had a child, but the narrative was not over. The Bible further tells us that the boy grew up to be a fine dad. यहाँ पर एलिशा बुलाता है और उनको वरदान देता है, और यहाँ पर जो स्त्री थी शुनेम की, वो कहती है मुझे धोखा ना दे, मुझे धोखा ना दे, क्योंकि हो सकता है उसको आश्चर्य हुआ, अरे हम तो बुजुर्ग हैं, इतने सालों से जिस चीज की वेट कर रहे थे और हमने उस चीज को दबा दिया था, अब ये परमेश्वर का दास ऐसे कह रहा है, तो है ना, बड़ा एक्साइटमेंट हुआ हो, बहुत ही प्रफुल्लित हुई होगी, या हो सकता है डाउट भी हुआ हो, ऐसे कैसे हो सकता है। एलिशा ने कहा कि तुझे गर्भ ठहरेगा, तुझे संतान होगी। और यहाँ पर बाइबल खत्म नहीं होती, यहाँ पर ये किस्सा खत्म नहीं होता। नाउ द अनदर क्रक्स स्टार्टेड, गॉड्स रिवॉर्ड कैन नॉट बी इन वेन। यहाँ पर परमेश्वर ने रिवॉर्ड दे दिया, रिवॉर्ड का वायदा कर दिया, मगर परमेश्वर जो भी कुछ देता है वो व्यर्थ नहीं जाता। जीवन जो भी कुछ परमेश्वर वरदान के रूप में देता है वो व्यर्थ नहीं जाता। Then the disaster strikes. Now the woman's response to the tragedy is interesting. अब यहाँ पर जब उसके जीवन में वो ट्विस्ट हुआ, वो एक ऐसी चीज आई उसके जीवन के अंदर, और यहाँ पर जो उसका रेस्पॉन्स था परमेश्वर के लिए, वो क्या था वो हम देखेंगे। Instead of arranging for the dead boy's funeral, अब क्या हुआ, उसका बेटा क्या हुआ, अचानक उसको लवने वाले दिन आए और अचानक उसके सर में दर्द हुआ, चक्कर खा के गिर गया। उसके बाप ने उठाकर उसको माँ को दे दिया, माँ ने गोद में रखा और शाम तक वो दोपहर तक वो मर गया। तो परमेश्वर का रिवॉर्ड है व्यर्थ चला गया। परमेश्वर ने उसको वरदान दिया अपने दास के रूप में, क्या वो व्यर्थ था, या परमेश्वर ने उसके साथ मजाक किया था? कैसे विश्वास यहाँ पर दिखेगा, किस तरीके से यहाँ पर हम विश्वास को देख सकते हैं, कैसे यहाँ पर सारी बातें परमेश्वर के साथ चलने में विश्वास के द्वारा अच्छी है। यहाँ पर जब हम आगे देखते हैं, she placed him on Elisha's bed and took off. उसने क्या किया, उसका फ्यूनरल को अटेंड नहीं किया। जैसे मर जाते हैं हम, रोना पीटना मचा देते हैं, है ना, चले जाते हैं, अरे ये हो गया वो हो गया, चर्च में इन्फॉर्म कर देते हैं, फ्यूनरल सिमेट्री को इन्फॉर्म हो जाता है, डीएस साहब या पास्टर इंचार्ज का लेटर आ जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। वहां पर वो शुनेम की स्त्री चाहती तो वो ये करती, मगर उसने नहीं किया। उसने अपने बेटे की लाश को, बॉडी को उठाकर जहां पर एलिशा कोने में रुका करता था उसके पलंग पर रख दिया। अब यहाँ पर जो परमेश्वर ने जो उसको रिवॉर्ड दिया था, है ना, वो क्या था? Her child died that same day in mother's lap. She immediately left to find Elisha and asked him to come heal her son. Elisha came back with a woman to Shunem. No matter what you are going through, don't bury it yet. यहाँ पर जब वो शुनेम की स्त्री जब जा रही थी, तो
एलीशा ने देखा, अरे वो स्त्री यहाँ पर आ रही है? तो क्या हुआ? एलीशा के पास जब ये बातें आई, है ना, ये बात जब एलीशा के पास आई, तो यहाँ पर एलीशा भी अचरज किया, ये क्यों आ रही है ना, ये स्त्री क्यों आ रही है? उसने कॉम्प्रोमाइज अपनी सिचुएशन के साथ नहीं किया। उस स्त्री, उसने अपने उस चीजों का समझौता नहीं किया जिस दुख से हो सकता है वो गुजर रही हो, नहीं किया। मगर वो स्त्री बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। उसने कभी भी अपने दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। He wants act of faith instead of worrying and fear. He can be sure this son born in their old age was very precious to his parents, so that when he died it would have been a much more severe blow and loss to them. That boy was the promised boy in the form of reward from God, given in love and yet taken away. है प्यार परमेश्वर ने किया, प्यार से उस वरदान को दिया और आप उसने ले लिया। कितनी चीजें यहाँ पर हम देख सकते हैं। Sometimes we receive a promise, but the promise is taken away. कभी कभी हम परमेश्वर से प्रॉमिस को, उन वायदों को हमारे जीवन में लेते हैं और वो वायदे कभी कभी हमारे जीवन से वापस भी ले लिए जाते हैं। What do you do? इस समय फिर क्या करेंगे? It's amazing to see how this mother maintained her faith and confession in spite of child's death. यहाँ पर उसने अपने उस विश्वास को मेंटेन करके रखा। उसने हावी नहीं होने दिया अपने दुख को, और उसने क्या कहा? उसने अपने बच्चे की मृत्यु को नहीं माना। उसने ये नहीं माना कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो व्यर्थ चला जाएगा, नहीं। वहां पर भी वो अपने टिकी रही अपने विश्वास में। She guarded her lips. उसने अपने मुंह को रोक के रखा। When her husband or prophet asked, "Is everything all right?" जब उसके पति ने, जब उसके दास ने, जब एलीशा ने भी पूछा, क्या सब कुछ ठीक है? तो स्त्री ने क्या जवाब दिया? By faith she answered, yes. She undoubtedly believed that since the child's birth had been a miracle, that another miracle to restore him to her. उसने ये कहा कि सब कुछ कुशल से है, सब कुछ भला है, क्योंकि उसने विश्वास को परमेश्वर पर रखा, उसके उस रिवॉर्ड पर रखा। उसने ये जाना कि यदि ये रिवॉर्ड मेरे जीवन में परमेश्वर की ओर से एक चमत्कार है, तो ये चमत्कार को वापस से परमेश्वर सामर्थ्य रखता है कि मेरे जीवन में पुनर्स्थापित कर दे। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि मेरा बच्चा मर गया, उसने ये नहीं कहा कि मैं दुखी हूं, वो रोई नहीं। उसने अपने मुंह की चौकसी की और ये चीज बोली, यस यस यस, एवरीथिंग इज ऑल राइट विद गॉड। सब कुछ कुशल से है। यहां पर जब हम तीसरी चीज देखते हैं, एवरीथिंग इज ऑल राइट विद गॉड का क्या मतलब है, उस रिवॉर्ड का क्या मतलब है? दैट इज द फाइनल स्टेप ऑफ फेथ इन गॉड एंड इन हिज रिवॉर्ड। यहां पर ये आखिरी एक स्टेप होता है परमेश्वर के उस अपने विश्वास को देने के लिए, परमेश्वर के इस रिवॉर्ड के ऊपर चलने के लिए। ये आखिरी एक फेथ होता है, एक आखिरी स्टेप होता है, हमारे सीढ़ी होती है। गहेजी couldn't perform miracle। जो गहेजी था, एलीशा ने पहले उसको भेजा था, मगर वो भी मिरेकल नहीं कर पाया, वो बच्चे को नहीं उठा पाया। The will of God was hidden to Elisha as well as women। और यहाँ पर जो परमेश्वर की जो इच्छा थी वो एलीशा के लिए भी छुपी हुई थी और उस स्त्री के लिए भी छुपी हुई थी। मगर यहाँ पर दोनों का, है ना, two faith were examined by God, Elisha's faith and women's faith। यहाँ पर दो जो लोग थे उनका परमेश्वर इम्तिहान ले रहा था, उनके विश्वास का। Through Elisha's prayer that reward was restored। क्योंकि जो वरदान परमेश्वर ने उस स्त्री को दिया था वो अपने दास के द्वारा दिया था। तो दास जो जिसके एलीशा जो था, ऐसा कैसे परमेश्वर होने देता कि वो अपने उस काम को किसी और को दे दे और कहे तू जाके कर ले? नो, जिसका काम उसी को साधे।
यानी ये एक मुहावरा है, जिसका जो काम है उसको वो ही करना है। और परमेश्वर ने भी हो सकता है एलीशा का इम्तिहान लिया और ये कहा कि जब मैंने एलीशा को बोला, है ना, ये परमेश्वर की तो प्रायोजना थी, तो क्या एलीशा क्या कहता है? एलीशा भी कुछ नहीं बोला, उठा और स्त्री के साथ चला। उठा और स्त्री के साथ चला। It did not go in vain but brought the greater and wonderful outcome in both life. ये व्यर्थ नहीं गया, मगर दोनों के जीवन को इसने और मजबूती से विश्वास के अंदर, परमेश्वर के अंदर बांध दिया। और इसलिए उनके जीवन में एक मिरेकल हुआ उस स्त्री के। Sometimes God's servant also have to examine of their designation in God, है ना? Both of facts were different in response to God, but finally everything was all right with God. दोनों का रेस्पॉन्स अलग अलग था, स्त्री का अलग था और एलीशा का अलग था। मगर क्या हुआ? परमेश्वर का जो वरदान था वो जब जीवन में पूरा हुआ और वहां पर वो लेकर आया, एवरीथिंग इज ऑल राइट विद गॉड। हम कभी कभी क्या करते हैं? अपनी इच्छाओं को गाड़ देते हैं, कभी कभी हम समझौता कर लेते हैं, कभी कभी जो बुरा हमारे साथ हो रहा है हम कहते हैं चलो ठीक है, इंसान है, होने दो होने दो होने दो। हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर कर लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। परमेश्वर निरंतर हमारे साथ खड़ा है, इसलिए वो हमारे विश्वास को देखता है, इसलिए वो कहता है डोंट बरी इट, इसको गाड़ो मत, बट हैव फेथ इन मी, प्लेस योर फेथ instead of burying your faith, burying your condition, your situation into the ground. No, believe in me, place your faith in me. God always asks from his lovable people. एक छोटा सा मैं आपको एक टेस्टिमनी बताता हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, जब हम MBA कर रहे थे, उसकी शादी हुई और वो अन्य जाति थी, उसकी शादी हुई और 5 साल तक उसके कोई संतान नहीं हुई। और जब हमारे राजस्थान में ऐसा होता है, सास जो होती है वो दबाव डालती, क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। बहुत दुखी थी, हर जगह चली गई, हर जगह पर उसने माथा टेका, कुछ नहीं हुआ। एक दिन ऐसे ही मेरा कॉल गया, मैंने पूछा और आप कैसी हो, सब ठीक है? उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ। उसने कहा मेरे को संतान नहीं हो रही है। मैंने कहा दुआ करेंगे। उसने कहा अपने जीसस से आप दुआ करना। मैंने ठीक है, हम दुआ करेंगे। क्या तुम्हें विश्वास है यीशु ये करने वाला है? कह रही हाँ मुझे विश्वास है, सब जगह से तो मैं थक गई, मगर अब यीशु पे ही मेरा आखिरी विश्वास है। मैंने कहा तुम्हारे विश्वास का आदर यीशु करेगा। दुआ करते गए करते गए करते गए, प्रार्थना में रिवील हुआ तुम्हें संतान होगी और लड़का होगा। मैंने उसको बोला, उसको यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, तुमने प्रार्थना करी, तुम परमेश्वर के जीसस तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है, हो सकता है ऐसा हो। एक दिन उसका कॉल आता 3-4 महीने के बाद, और वो काफी रो रही थी, बहुत रो रही थी। उसने कहा कि देखो तुम्हारे जीसस ने भी मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, मुझ पे फोर्स आ रहा है, मुझ पे लोग हिकारत से देखते हैं कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मैंने कहा प्लेस योर फेथ इन गॉड, अपने विश्वास को मत छोड़ो, अपने विश्वास को यीशु को लगाए रखो। मैं घुटनों के बल गया, मैंने परमेश्वर से मांगा, मैंने खुदा क्या बात है, क्या कमी आ रही है, कहां पर कमी है? परमेश्वर ने बोला विश्वास तुम्हारा है उसका भी होना। कॉल करके मैंने बोला तुम्हारा विश्वास मुकम्मल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। फिर मैं भूल गया। फिर एट माई बर्थडे 25 अप्रैल, मुझे अभी तक याद है, दोपहर के समय कॉल आता है और वो कहती है हैप्पी बर्थडे माय डियर ब्रदर, मैं बहुत खुश हूं और तुम्हारा जन्मदिन है। और मैंने कहा, ऐसी मजाक में पूछा मेरा गिफ्ट क्या है? सिस्टर ने बोला कि जिस दिन तुमने प्रार्थना की थी उसी दिन मेरे गर्भ के अंदर बच्चा ठहर गया। ये है परमेश्वर का रिवॉर्ड। और मैं एक्सपेक्टेशन है मेरी, और मुझे 3रा महीना शुरू हो रहा है, और तुम्हारे आपके जो जन्मदिन के ऊपर ये मेरा 3रा महीना है। मैं चाह रही थी कि ये खुशखबरी मैं तुम्हारे जन्मदिन पे दूं। मेरा दिल
खुशी से भर गया, मैं उछल पड़ा, मैंने कहा हालेलुया, थैंक यू जीसस, आपने अपने दास की बात को आपने झूठा जाहिर नहीं होने दिया। इसलिए यहाँ पर ये बात है कि डोंट वरी योर फेथ, डोंट वरी योर कंडीशन, योर सिचुएशन, ऑलवेज फाइट विद देम। उनसे लड़िए, चुनौती दीजिए, लड़िए, क्योंकि हमारा यहोवा हमारे साथ खड़ा है। He always stands with us. हमारे साथ वो हमेशा खड़ा है। This is exactly the way we also should respond to God in our times of refinement. We must not complain, turn our backs on God, or return to our old ways. No, but fully submitted ourselves to God's authority and allow Him to refine our faith and let it grow with His walk. When we do, God is faithful to honor and reward us. जब हम इस काम को करते हैं तो परमेश्वर हमारा आदर करेगा और हमें उस रिवॉर्ड को देगा। इसलिए इस स्त्री के जीवन से हमेशा 3 बातें याद रखिए अजीजों। परमेश्वर पहनाई का रिवॉर्ड देता है। दूसरा, परमेश्वर जो रिवॉर्ड देता है, चाहे वो उसकी वाचा के अंदर हो, चाहे वो उसके प्यार में हो, चाहे उसकी दया में हो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। और तीसरा, आखिरकार चाहे सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, एवरीथिंग इज ऑल राइट विद गॉड। और एट द एंड परमेश्वर सब कुछ पुनर्स्थापित कर देता है, सब कुछ अच्छा करता है और भलाइयों को उत्पन्न करता है। दैट्स व्हाई स्क्रिप्चर सेज, इफ गॉड स्टैंड्स फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? यदि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता जीसस। इसलिए in the times of trouble we always believe in Jesus. In the times of trouble we should go into the presence of God. In the times of trouble we should have faith in God. In the times of trouble place your faith in God and then you will receive your miracle. अपने विश्वास को जब आप परमेश्वर पर रखेंगे, अपने चमत्कारों को आप अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर आज के इस वचन से हम सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के संदेश को करते हैं। धन्यवाद सब शक्तिमान, वास्तव में पिता हमारे विश्वास को आप बढ़ाएं। इस शुनेम की स्त्री के द्वारा पिता आपने हमें सिखाया और होने दीजिए हमारा विश्वास आपके ऊपर हो। और पिता आपके साथ सब कुछ भला है, आपके साथ सब कुछ संभव है पिता। और होने दे आज का जो वचन व्यर्थ ना जाए, बल्कि हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए और इससे आप आदर और महिमा पाए पिता। एक बार फिर से संपूर्ण आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं अजीजों। अब ये वक्त होगा हमारी ऑफरिंग्स का। ये वक्त होगा कि हम अपनी ऑफरिंग्स को परमेश्वर के लिए हम देंगे, अपनी भेंटों को जमा करेंगे। हम जहां पर भी हैं, ऑफिस खुले हैं, आप लोग आ सकते हैं और अपनी भेंटों को आप चर्च में जमा करा सकते हैं। और जो गीत पाया जाता है वो पाया जाता है इंग्लिश मेथोडिस्ट हिम्नल सॉन्ग नंबर 159 और यही सॉन्ग हिंदी मेथोडिस्ट हिम्नल सॉन्ग नंबर 311 के अंदर पाया जाता है। इंग्लिश में इसके बोल हैं आई एम दाइन ओ लॉर्ड और हिंदी के अंदर जो बोल हैं वो हैं तेरा हूं आए रब। आइए परमेश्वर को इस गीत के दौरान हम सब महिमा दें। But I long to rise in the
मुझसे पूरी हो मेरी मर्जी हो मखलूक। रख तू मुझको ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पर। Oh, the beauty light of a single eye, that before thy throne I am. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune with friend. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to the precious bleeding side. तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पर। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। अब ये वक्त होगा कि हम ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास से कि वो आए और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। उसके बाद हम चर्च के अनाउंसमेंट्स को सुनेंगे। क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन के साथ हम लोग सब रुखसत होंगे। और अब ये समय मैं रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास साहब को देता हूँ कि वो आए और इसके दौरान हम सब की अगुवाई करें। आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। लेट अस प्रे फॉर दिस ऑफरिंग दैट वी ऑफर्ड टू आवर हेवनली फादर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्तुति के साथ परमेश्वर पिता इस भेंट को आपकी वेदी में लाते हैं और आपसे प्रार्थना करते प्रभु इसको आप स्वीकार करें ताकि भेंट प्रभु आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। जिन्होंने दिया प्रभु उनके जीवनों पर आपके आशीष हो। हमें प्रभु इस बात का एहसास हो कि हमारा समय, हमारे गुण, हमारे वरदान और हमारा धन, हमारी इस तमाम बातें प्रभु जो आपने दी है प्रभु आपके लिए है। आप इसे स्वीकार करें एवं देने वालों को आशीष से परिपूर्ण करें। इस कलीसिया पर आपके आशीष हो, कलीसिया के एक परिवार पर आशीष हो प्रभु। खासकर इन दिनों में जो प्रभु जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके तनख्वाहें कम होगी प्रभु दया करें ताकि वो आपकी महिमा करें और आपके नाम की स्तुति कर सकें। इस भेंट पर आपके आशीष हो, ये आपके राज्य के कार्य में इस्तेमाल हो सके। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग पिछले कुछ रविवार से बीमारों के लिए खास प्रार्थना करते हैं और आज भी करेंगे। अगर आप में से जो हमारी कलीसिया के हैं और ऐसे भी जो आज देख रहे हैं इस आराधना को, भाग ले रहे हैं उसमें, अगर आज आप बीमार हैं, परेशान हैं, दुख में हैं और अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, हम चाहते कि आप अपना दाहिना हाथ उठा दें, हम आपके लिए प्रार्थना करें। अगर आप खड़े हो सकते हैं तो मेहरबानी से खड़े भी हो जाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वचन में लिखा है याकूब की पत्री के 5वें अध्याय के अंदर उसके 13 पद से आगे कि अगर तुम में से कोई बीमार हो, दुखी हो, परेशान हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए हुए उस पर तेल मलकर प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। और यही हम जानते हैं, भजन 130 में लिखा है कि वो तुम्हारा चंगाई का देने वाला यहोवा रफा है। तो आइए हम प्रार्थना में चलें और हम इसमें शरीक होंगे। लेट अस प्रे फॉर द सिक पीपल
among us so that God may touch and heal us. Heavenly Father, this morning we want to thank and praise you for your presence in our lives. We thank you, Lord, that you are with us. Thank you, Lord, that you guide and lead us. We thank you, Lord, that you heard our prayer. And even now we pray for those who are not well today in the name of Jesus. As they have raised their hands, as they have been standing, Lord. हम जानते प्रभु हम में से कुछ लोग बीमार है प्रभु, जिन्होंने अपने दाहिने हाथ को उठाया है या अपने जगह पर खड़े हैं. हे यीशु, आप दृष्टि करें प्रभु, जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है उनके शरीर में प्रभु, उनके सर से लेकर उनके पैर के नाखून तक, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उनको चंगाई दें, ताकि प्रभु आपकी चंगाई को क्लेम करें और आपके नाम का धन्यवाद कर सके. अपना पवित्र लहू जो यीशु मसीह का है प्रभु, उनके चारों तरफ छिड़के प्रभु, ताकि स्वस्थ हो जाए प्रभु. दया करें. Lord, have mercy upon these people, so they may be healed completely and cured completely and come out of their sick bodies, come out of their sick condition, and able to exalt and magnify and glorify His name. प्रभु हम प्रार्थना करते जो लोग मेंटली परेशान है, डिप्रेशन में है और जिनके जीवन में कोई आशा नहीं, हम चाहते प्रभु को उनको स्पर्श करें प्रभु, ताकि वो भी आपकी महिमा, स्तुति और बड़ाई कर सके. हे पिता परमेश्वर, हम कलीसिया के एक एक बच्चे को, एक एक जवान को, एक एक प्रौढ़ को, एक एक बुजुर्ग को प्रभु, खासकर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर, प्रभु उन पर दया करें और उनके यीशु मसीह के नाम से चंगाई दे प्रभु. उनकी बीमारी को दूर करें, उनकी निराशा को दूर करें प्रभु जी, और अपना पवित्र लहू उन पर छिड़के उन पर लगाएं. जिस प्रकार से मिस्र देश में इस्राएल जाति के लोगों ने उस माँ जो अबीब का मह था और उस माँ के 14 दिन उन्होंने उस बलिदान के मेमने को मारा और उसके लहू को अपने चौखट के बीच में लगाया, ऊपर और दोनों तरफ लगाया, और उस रात वो अंदर रहे, क्योंकि मौत का दूत निकला परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और वो सब मारे गए जो मिस्र में थे, पहले उठे. हे प्रभु, आप वही परमेश्वर हैं. हम चाहते कि लोगों की रक्षा करें प्रभु जी, आपके विश्वास की रक्षा करें, उनको चंगाई दे, क्योंकि आपने कहा है कि जो बीमारी या तकलीफ उनमें आई जिन्होंने तुम्हें गुलाम बनाया, तुम्हारे अंदर नहीं आएगी. तो प्रभु उन पर दया करें, चंगाई दे, उनके साथ रहें. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपकी चंगाई उनके लिए भी है जो आज दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनको छुटकारा दे प्रभु, ताकि स्वस्थ हो जाए और आपके नाम की स्तुति बढ़ाई कर सके. और हम जानते कि आपने प्रार्थना सुनी है. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन. कलीसियाई सूचना इस प्रकार से है इस हफ्ते के लिए और आगे भी. डियर फ्रेंड्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, the classes for the confirmation has ended, and very soon when we'll get the permission to reopen the church, we'll announce the date for the confirmation. And I thank all our teachers who have taught in these classes, who have taken time. And yesterday I was inquiring, and many classes have been completed, and almost 30-35 people are ready for the confirmation. And may the Lord bless them, and in the time the Lord has fixed, they all will be confirmed and will be taken into the full membership of Methodist Church in India. Every Sunday we have a service online, and that start at 10 o'clock. हर एक रविवार को, जब तक ये पेंडेमिक है, ये लॉकडाउन है, हमारी आराधना जो प्रभु के हम करते हैं उसका समय है सुबह 10 बजे हर रविवार को. वीकली बाइबल स्टडी हर मंगलवार को, हर गुरुवार को, हर शनिवार को शाम को 7:30 बजे. एमवाइब की मीटिंग हर रविवार को दोपहर 2 बजे से जूम के द्वारा. एमवाइब मीटिंग एवरी संडे एट 2 o'clock afternoon by Zoom. Every Sunday at 5 o'clock we have Sunday school by Zoom. Please remember and bring your children and let them attend this Sunday school. And every second Sunday we have WCS meeting by Zoom at 4 o'clock. And I request and I thank our WCS sisters who are leading, and many of them are attending. May God bless. If you have any type of problem or you are sick and you need pastors to pray for you,
please come to the pastor's office every weekdays from 10:30 a.m. to 5 o'clock p.m. And pastors are available here in the office. They will definitely pray for you and help you in your spiritual life. अगर आपके आसपास ऐसे लोग आप देखते हैं, कुछ परिवार जो दुखी है, परेशान है और शायद उनके पास राशन नहीं है, रॉ राशन, मैं चाहूंगा कम से कम एक परिवार की आप मदद करें और जो भी उनका आवश्यकता है आप उनके लिए मदद करें और प्रभु इसकी आशीष आपको देगा. डियर फ्रेंड, ड्यूरिंग दिस डेज देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट हैव राशन in their family, and we have been helping them in the past also, even now also, and I just want to thank you and appreciate you for doing this. Continue to do that so that Lord's name be glorified and be exalted. We continue to remember our country's leader, our president, our prime minister, our governors, our chief ministers, our MPs, MLAs, IAS officer, IPS officer, our police and our army, and all the people who are working to make us live a peaceful life. Please offer our prayer for them in your family prayer every night or every morning. And also I pray for our church leaders, and let us pray for them because these are very hard days. Lot of struggles are there, lot of challenges are there. Let us pray for our Bishop Subhasri Mandal Sahib, Madam Sudipta Mandal, all our pastors, all our DSS, all our laity, lay leaders in regional and district level. Let us pray for our WC sisters and our MY boys and girls and our Sunday school children, so that in these hard days, God may put His hand upon all of us and we may work for His glory. मित्रों, आज के आराधना में जिन्होंने हमारी मदद करी, उन सब के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु की आशीष उन पर हो, खास करके मिस्टर प्रकाश तिग्गा और उनकी टीम और भाई नंदराज जो रिकॉर्ड करते हैं और कंपाइल करते हैं सारे प्रोग्राम को, मिस्टर प्रकाश तिग्गा और तमाम हमारे MMF के भाई और तमाम वे लोग जो वॉलंटियरी प्रभु की महिमा करते हैं, अलग अलग काम को करने के द्वारा, एफर्ट्स के द्वारा इस आराधना को आपके तक लाने के द्वारा, उन सब के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं. आइए हम प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन लें. We thank you, Lord, for hearing our prayer this morning, accepting our worship this morning, and we know, Lord, that you are great, mighty and holy God. We want to submit and surrender our lives on your altar. Undertake us, guide us and lead us. As we go from this place, Lord, in our own works, Lord, let your blessing that you have given us today during this worship may remain in us, so that we may read your word daily, we may meditate upon your word daily, and we may grow in your grace every day. प्रभु धन्यवाद देते कि आज आपने हमारी मदद करी, आराधना के दौरान, वचन के सुनने के दौरान, आपकी महिमा करने के दौरान, इन सब के लिए आपका धन्यवाद करते. प्रभु आज के इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आनंद के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु इस सप्ताह के हर दिन और आगे इस महीने के हर दिन हमारी मदद, हमारी सहायता करें. इस देश पर आपकी आशीष हो कि आपने हमें एक आजाद देश दिया प्रभु. 15 अगस्त को हम इस दिन को मनाएंगे. हम इस देश के लिए आनंद के साथ आपको धन्यवाद देते चाहते प्रभु कि देश के अगुओं पर, नेताओं पर, खासकर जो हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे राज्यपालगण हैं, हमारे मुख्यमंत्रीगण हैं और तमाम जो कार्य करते प्रभु, उच्च और निम्न पदाधिकारियों के प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं. कलीसिया पर आपके आशीष. हमारे बिशप साहब, बिशप सुभश्री मंडल, मैडम सुदीता मंडल, कॉन्फ्रेंस के सारे ऑफिसर्स, पासवान, DSS और लेटी और WSS की बहनें, एमबाग के बच्चे और जवान और कलीसिया के हर एक बच्चे को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं. एफएसएल मेथोडिस्ट चर्च के कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. एक एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं. आपके प्रतिज्ञाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. आज की आराधना के आनंद और शांति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें. उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन. आइए हम बेनेडिक्शन लें. अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की फाकत और शराकत हमें हर एक के साथ, एक एक परिवार में रहने वाले एक एक बुजुर्ग के साथ, माँ बाप के साथ, जवानों के साथ, बच्चों के साथ, भाई और बहनों के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन.